Hello everyone, we'll be starting with chapter number 1, which is electric field and charges. We'll be covering some important questions with respect to chapter number 1. As you know कि MCQ based है, so we'll be covering some MCQs जिसमें numericals भी involve हो सकते हैं. So let's start with it. Question is related to Coulomb's law and they are asking you K का यूनिट कितना होता है. जैसे आपने देखा होगा कि Coulomb's law के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, और यहाँ पे फोर्स किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में. K इज़ अ कांस्टेंट. Q1 क्या है आपका, कूलम, और Q2 क्या है, वो भी कूलम है. R स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम मीटर में ही मेजर करेंगे. नाउ यू कैन सी कि दिस इज न्यूटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे क्या है हमारे पास, कूलम स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर. नाउ चेंज द वैल्यूज ऑफ इट. मीटर स्क्वायर न्यूटन के पास आ जाएगा एंड कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा. So the constant proportional is equal to Newton meter square Coulomb square, which is option number C. Now let's start with question number 2. It says the magnitude of 1 by 4 pi epsilon naught. तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है K की 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर. तो यहाँ पे आप ध्यान रखना 8.98 जो है ये कैन बी कन्वर्टेड टू 9 एज वेल, क्योंकि राउंड ऑफ करोगे तो 9 हो जाएगा. सो यू कैन सी द मोस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू इज ए पार्ट, मतलब जो 8.98 है वो किसके क्लोजेस्ट है, 9 के. और ये ध्यान रखना इट्स पावर इज +9 not -9. So first one is the right option. Now let's start with next question, which is question number 3. It says when a solid body is negatively charged by friction, it means that the body has acquired excess of electron, lost some protons, acquired some electron and lost a lesser number of protons, lost some positive ions. So अगर आप एक बॉडी को, सॉलिड बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, so that means the body has what type of electrons, what type of charge, it has acquired excess of electrons. उसने क्या कर लिया, excess amount of electrons acquire कर लिए. So you can see that the right option is A part. Now let's move to question number 4. It says a force of 0.01 Newton is exerted on a charge of 1.2 into 10⁻⁵ Coulomb at a certain point. The electric field at that point is. तो सबसे पहले आप ध्यान दो यहाँ पे, तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, force is 0.01 Newton and what else is there, this is charge present on it. Q is there, Q is 1.2 into 10⁻⁵ Coulomb. Now we have to find electric field, और electric field किससे दिया जाता है, F over Q, I mean force over charge. So force is 0.01 and Q is 1.2 into 10⁻⁵. So when you solve this, you will get the value as 8.3 into 10⁻² Newton Coulomb inverse. So yes, this is your answer, and which is same as D part. So this is your answer for question number 4. Now let's move to question number 5 now. It says that two charges are placed at a certain distance apart in vacuum. So if you are placing two charges in vacuum, what will be the force for it? It will be F is equal to K Q square R square. अब यहाँ पे उन्होंने बोला इफ़ अ स्लैब इज़ प्लेस बिटवीन देम, एक उन्होंने स्लैब प्लेस कर दिया है उनके बीच में, तो फोर्स में क्या चेंज आएगा, फोर्स में कुछ चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि आपका जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसका भी परमिटिविटी हो जाएगा. जैसे K होता है जो हमारा, वो क्या होता है, K इज़ बेसिकली इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्पेस की परमिटिविटी. तो ये वाली कंडीशन तो हमारी स्पेस वाली थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने एक स्लैब प्लेस कर दिया, तो उसकी भी अब परमिटिविटी आएगी, तो उसको मैं बोल रही हूँ एप्सिलॉन m. देन वी हैव Q square as it is, R square as it is. Now if you divide them, or if you replace the value of K Q square R square, what will be your answer? It will be F dash is equal to F by epsilon
m। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे परमिटिविटी डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब फोर्स हमारी किससे डिक्रीज हो रही है, बाय permittivity of the medium. So it will decrease obviously because we are dividing it with by epsilon m, right? So it will decrease if you place a slab between them, and if it is without slab, it has a force same as Coulomb's force. Now next question, question number 6, it says you have 2 points A and B are 2 points and in an electric field, and they are saying if the work done in carrying a 4 coulomb of electric charge from A to B is 16 joule. मतलब यहाँ से आपको एक 4 coulomb चार्ज ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इट नीड्स टू बी 16 जूल, एंड दे आर सेइंग फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज़ बेसिकली इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। डी वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। तो ए पे पोटेंशियल कितना है और बी पे पोटेंशियल कितना है, क्योंकि पोटेंशियल हमें किसके बीच का निकालना है, ए एंड बी का। सो इट विल बी बेसिकली क्यू, और इंटीग्रेट करोगे डी वी को तो क्या आ जाएगा, वी, और उसकी अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है। सो बेसिकली इट विल बी वी बी माइनस वी ए। And most important thing, we have to find VB minus VA, and W is given as 16, Q is given as 4. So VB minus VA कितना हो गया आपका, it is basically equal to 16 over 4, which is 4, and your answer to this is 4 volt. Your answer for this is C, which is 4 volt, right? Let's start with question number 7. It says how many electrons will have a charge of 1 coulomb. तो इन्होंने हमसे पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इनकी क्वांटिटी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने हुए, एक इलेक्ट्रॉन में हो गए आपके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मेरे को कितने में चाहिए, मेरे को चाहिए 1 कूलम में। तो 1 कूलम की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू विल राइट 1 कूलम हेयर एंड डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, नीचे ले जाओ उसको, यही होता है यूनिटरी मेथड। सो 1 कूलम में कितने हो गए, इट विल बी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो पॉजिटिव बनाओ 10⁻⁻19 को, फॉर कैलकुलेशंस आई एम टेलिंग यू। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटा के ऊपर क्या प्लेस कर सकते हो, 10, और नीचे क्या आ गया 16। सो यहाँ पे 10 और 16 को वी कैन रिड्यूस, इट कैन बी 5/8, और 5/8 इज़ बेसिकली 0.625 इंटू 10⁻90। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वाली फॉर्म में, ध्यान से देखें तो। क्योंकि अगर इफ़ आई टेक दिस बैक, एक स्टेप अगर पीछे लेकर जाएंगे तो ये 6.25 हो जाएगा, एंड इफ़ यू आर टेकिंग इट बैक subtracted from 1, so it will be 10 to the power 18, or 6.25 is approximately equal to 6.2. So yes, your answer is 6.2 into 10⁻18 electrons. So this is the number which is present in 1 coulomb of charge. Let's now do next question, which is question number 8 for you. Now in this case it says we have 2 charges of 1 coulomb and 5 coulomb are placed at some distance. They are placed at some distance in air. So we have 1 coulomb and we have 5 coulomb, and they are placed some distance apart in air. Now they are saying कि find the ratio of the forces acting on them, कि क्या फोर्सेस उनके ऊपर एक्ट कर रही है। तो एक तो हो जाएगी, लेट्स से कि ये हमारा Q1 है, दिस इज़ माई Q2, एक फोर्स हो जाएगी लेट्स से F12, it will be F12, it is because of 1 coulomb due to 5 coulomb, force on 1 coulomb due to 5 coulomb. अब इसी तरह you can find F21. F21 कैसे निकालोगे, force of 5 coulomb due to 1 coulomb,
राइट। अब आपके पास F12 भी आ गया, आपके पास F21 भी आ गया। F12 निकालना चाहो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले आपको पता है कि K होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन वी हैव चार्ज 1 is 1 ओनली, चार्ज 2 is 5 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब F21 कितना हो जाएगा आपका, इट इज़ K और चार्ज क्या है 5 फिर 1, देन यू हैव R square. Now you can divide these two. You can find the ratio of these two. So it will be F12 over F21 equals 5K R square. नीचे भी 5K R square. So now divide them and it will be equal to 1:1. So your answer to this is C part, जिसमें आपको पता चला कि आपका रेशियो ऑफ फोर्सेस जो एक्ट कर रही है उनके ऊपर दे आर इन 1:1, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दो चार्जेस है हमारे पास और F12 होगा और F21 होगा तो ऑब्वियसली दे विल बी equal in measurement, and if we divide them we will get the ratio as 1:1. That's it. Let's start with question number 9. It says at a large distance r the electric field due to a dipole varies as. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है फॉर द केस ऑफ डायपोल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली डिफाइंड एज 1/4 pi epsilon naught p over r square plus a square raised to power 3/2. अब ये क्या बोल रहे हैं हमें, इफ़ इट इज़ एट अ लार्जेस्ट डिस्टेंस. तो अगर लार्जेस्ट डिस्टेंस है उसका तो इसका मतलब वी कैन इग्नोर ए आउट ऑफ इट. हम ए की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं. ए की वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे आप निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे आप बेसिकली निकालना चाहते हो उसको ये बोल रहे हैं ए. तो ए को हम इग्नोर करते हैं अगर, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 1/4 pi epsilon naught p r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और आर की पावर देखो कितनी है, आर क्यूब. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू 1/r क्यूब विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा आप आर इंक्रीज़ करोगे उतना कम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अगर आप आर कम रखोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. सो येस, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन r cube and electric field if it is at a larger distance. So C is the correct one. Now moving to last question of it. So this is question number 10 for you. Here it says that we have 2 point charges plus 2 Coulomb and plus 6 Coulomb and they repel each other with a force of 12 Newton. तो obviously अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. एक है आपका प्लस 2 Coulomb, दूसरा है आपका प्लस 6 Coulomb. अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या बोला है उन्होंने, इफ़ अ चार्ज ऑफ -4 Coulomb इज़ गिवन टू ईच ऑफ दीज चार्जेस. मतलब -4 Coulomb आप इनको दे रहे हो दोनों को. तो अगर आप 2 Coulomb को -4 Coulomb प्रोवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी चेंज टू -2 बिकॉज +2 - 4 इज -2. So this will give you -2 Coulomb. Just a second. Now in the next case अगर आप 6 Coulomb को -4 Coulomb दोगे तो कितना हो जाएगा, +2 Coulomb. तो हमारे न्यू चार्जेस कौन से हो गए, -2, एंड पुराने वाले कौन से चार्जेस थे, इनिशियल या ओल्ड चार्जेस, दीज वन, राइट, +2 Coulomb एंड +6 Coulomb. नाउ दे आर सेइंग व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम. जो न्यू चार्जेस हैं हमारे उनके बीच में क्या फोर्स होगी. और हमें पता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करती है, के Q1 Q2 R स्क्वायर. और देखो K तो कांस्टेंट है, K की वैल्यू तो हर जगह सेम ही रहती है. और दूसरी चीज़ आपका जो R स्क्वायर है वो भी क्या है, कांस्टेंट है. K और R दोनों ही कांस्टेंट है. सो वी कैन इग्नोर देम. तो हमारे पास बचा क्या, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहली वाली जो फोर्स होगी वो ओल्ड वाले के लिए है और फिर हम न्यू वाली चार्जेस के लिए निकालेंगे. F1 के लिए निकालते हैं सबसे पहले. सो यू हैव Q1 इंटू Q2, तो 2 Coulomb हो गया, 6 Coulomb हो गया. F2 किसके लिए, इट विल बी फॉर -2 एंड 2. इफ़ यू डिवाइड इट और F1 को चेंज कर दो क्योंकि F1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. ये देखो पहले each other with a force of 12 Newton. तो F1 को I can replace it with 12. So let me replace it with 12 first. So this is
गोना बी 12 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो 12 on left side, then f2 is there, then 3 on the right hand side and minus 1 in denominator. So now if you want to find the value of f2, you will take f2 to the right side and 12 over 3 it will be, or minus you can take. So it is basically minus 4 Newton. F2 is minus 4 Newton. And which type of basically force they have is they have attractive forces. Why? Because you can see the हमारे न्यू चार्जेस हैं वो एक -2 कूलम है और दूसरा +2 कूलम है. सो इनके बीच में क्या होगा? ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा. सो येस, राइट ऑप्शन टू दिस इज B part, which is 4 Newton, attractive in nature. So yes, this is done. We have covered 10 questions related to chapter 1. So we'll be covering more questions related to it because अभी इससे पूरा complete नहीं हुआ. तो आप ज़रूर देखना next video जो भी आएंगे और भी chapters की I will try to bring out as soon as possible. Thank you for watching and do subscribe the channel. Thank you.